السلام علیکم دوستو، ذوق اردو کاوش 77 میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج ہم محاورہ کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، برتنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو محاورہ تقریباً ہم چوتھی پانچویں سے سیکھنا شروع کرتے ہیں اپنے ٹیکسٹ بکس میں، یعنی کہ نصاب کی کتابوں میں چوتھی جماعت سے محاورہ سکھانا باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم محاورہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم محاورات کیوں سیکھتے ہیں اور ان کا استعمال ہمیں کیوں کرایا جاتا ہے۔ آج ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم اپنی اس کاوش میں سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو سب سے پہلے محاورہ اور اس کی تعریف میں یا اس کو سمجھنے میں جو چند لفظ آئیں گے، زیادہ سے زیادہ استعمال ہوں گے، ان کی ادر ورڈز، ان کے معنی ہم سمجھ لیں تاکہ ہمیں محاورے کو بہترین انداز سے سمجھنے کی، سیکھنے کی ترغیب ہو یا آسانی ہو۔ محاورہ کہتے ہیں رواج کو، ایک رواج ہو جائے اس کو محاورہ کہتے ہیں، عادت کو بھی محاورہ کہتے ہیں، بول چال جو ہم روٹین میں، ڈیلی میں جو بول چال ہوتی ہے اس کو بھی محاورہ کہتے ہیں، بات چیت اس کو بھی محاورہ کہتے ہیں، کسی خاص گروہ کی بول چال یا لفظوں کی ترکیب۔ اب یہ ذرا مشکل معنی آتی جا رہی ہیں۔ کسی خاص گروہ سے مطلب کوئی زبان بولنے والے، ان کی لفظوں کی خاص ترتیب جو ان سے ہی تعلق رکھتی ہو، جن کے معنی مطالب وہی بیان کرتے ہوں۔ باہمی گفتگو اس کو بھی محاورہ کہتے ہیں، ہم کلامی اور مشق کرنے کو بھی محاورہ کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کے ادر ورڈز۔ اور یہاں پر جو ہم پڑھیں گے جن معنوں میں، وہ ہے بول چال، بات چیت، کسی خاص گروہ کی لفظوں کی ترکیب یا ہم کلامی، اس معنی کو ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ دوستو حقیقی کہتے ہیں اصلی، حقیقی کہتے ہیں اصلی کو، جینین کو، واقعی یا کوئی اوریجنل چیز، اس کو حقیقی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے دوستو مجازی حقیقی کا ضد ہے۔ حقیقی معنی اصلی اور مجازی معنی غیر اصلی یا نقلی۔ حقیقی معنی واقعی اور مجازی معنی فرضی، ایک فرض کر لی جائے، اپنے طرف سے بنائی یا گھڑی ہوئی لفظوں کی معنی میں اپنی طرف سے گھڑ لوں، بنا لوں، تو ان معنی کو ہم کہیں گے یہ مجازی معنی ہے۔ خود ساختہ جو خود نے بنائی ہو، اور نقلی، یہ ہیں مجازی کے معنی۔ جس طرح سے کہتے ہیں مجازی خدا۔ اہل زبان کا مطلب ہے مادری زبان بولنے والے، جو اپنی مادری زبان بولتے چلے آتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ اہل زبان ہیں۔ جن کی بول چال سند ہو، جن کی بول چال ایک اتھارٹی ہو، ایک سرٹیفائیڈ ہو، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ اہل زبان ہیں۔ کسی زبان کے مشاق شاعر و ادیب، کسی زبان کے بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجہ کے جو شاعر یا ادیب ہوتے ہیں، وہ بھی اہل زبان کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک دوستو، یہاں تک آپ نے سمجھ لیا۔ اس کو اگر نہیں سمجھا تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، دوبارہ سمجھ لیں، پھر ہم محاورہ کی تعریف کی طرف جاتے ہیں۔ دوستو اب ہم محاورہ کی تعریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس میں لائے گئے، برتے گئے، استعمال کیے گئے فعل یعنی کہ ورب کی حقیقی اصلی معنی استعمال نہ کی جائے۔ مطلب جو ہم جملہ یا جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے جو
मुरक्किब है जिससे बात मुकम्मल समझ में आ रही है, साज़दार इसमें फेल होगा और वो उस जुमले में लाया गया फेल उस फेल की असली या हकीकी माना ना हो। जब हम उसका मतलब निकालें, उस जुमले में इस्तेमाल किया गया जो वर्ब है उसकी जो माना है वो असली ना हो, बल्कि मजाजी यानी कि गैर हकीकी माना इस्तेमाल की जाए। जुमला बोला, अब उसके फेल की जो माना है वो हकीकी असली नहीं है, बल्कि वो मजाजी माना उसकी लाई गई है। उसमें जो फेल के मतलब लिए गए हैं वो अदर वर्ड से नहीं है, वो लुग़वी माना नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से माना उसके लिए बनाए गए हैं, अपनी तरफ से मानी उसके ढाले गए हैं। और ये लफ्ज और ये मानाएं कौन बनाते हैं? उस वर्ब की हकीकी के बजाय मजाजी माना कौन बरतते हैं, कौन इस्तेमाल करते हैं? वो होते हैं अहले जुबान, उस जुबान के बोलने वाले, वो मजाजी माना उसके लिए बनाते हैं। दोस्तों, मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, मुहावरा में बरते गए फेल के वर्ब के हकीकी माना इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उस फेल के मजाजी माना इस्तेमाल होते हैं। और वो मजाजी माना अहले ज़बान उसके लिए घड़ते हैं, अहले ज़बान उसके लिए बनाते हैं, अहले ज़बान उसके लिए मुताय्यन करते हैं। अब किस तरह से, आइए समझने की कोशिश करते हैं मिसालों से। मिसाल की बात है, एक मुहावरा है नाक में दम करना। नाक में दम करना, अब दम करना मतलब ये है कि सांस करना वगैरह वगैरह। दम माना सांस है, दम माना जान है, दम माना जिंदगी है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस जुमले में या इन दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमुआ में इसकी हकीकी माना इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि मजाजी माना इस्तेमाल हो रही है, जो भी परेशान करना या तंग करना। हालांकि दम करना का अदर परेशान तो नहीं है और ना ही तंग करना है, तो मुहावरा में हकीकी माना इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि मजाजी माना इस्तेमाल की जाती है किसी भी वर्ब की। जिस तरह से दम करना वर्ब है, इसकी हकीकी माना हो गई जान देना, जिंदगी देना या सांस देना वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका माना है परेशान करना या तंग करना। तो इस तरह ये हो गया हमारा मुहावरा। और ये कहाँ से आया? ये अहले जुबान ऐसे बोलते आते हैं। अहले जुबान वालों ने इनको घड़ लिया है, इनको बना लिया है। दूसरा है आग बगोला होना। अब इसका बगोला होना वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? ये वर्ब है, यानी कि फेल है, और इसका मतलब है कि गोला हो जाना। बगोला होना माना गोला हो जाना, एक गोल जलती हुई चीज बन जाना। हालांकि अथर्वण तो इसका ये है, हकीकी माना तो ये है, लेकिन चूंकि मुहावरा में हकीकी माना इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि गैर हकीकी और मजाजी माना इस्तेमाल होती है, इसलिए इसका मतलब आपका गोला बनना नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से में होना होगा। इसकी मुहावरतन माना बहुत ज्यादा गुस्से में होना। तो इन दोनों में कोई हकीकी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं बनता। मुहावरा में फेल हकीकी तौर पर माना में नहीं लिया जाता, बल्कि मजाजी तौर पर लिया जाता है। और इसके लिए ये बहुत ज्यादा गुस्से में होना किन्होंने बनाया? अहले जुबान ने। अहले जुबान, उस जुबान के बोलने वाले, बरतने वाले, ये बोलते आते हैं। अब एक और जान बहक होना। अब बहक होना माना सच्चा होना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे है फौत हो जाना या मर जाना वगैरह। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा है, चौथा है टूट पड़ना। अब टूट पड़ना, टूट माना है कि वो चीज ब्रेक हो जाना, पड़ना माना है किसी चीज पर इस तरह से लेट जाना या वगैरह वगैरह, तो पड़ा रहता है, लेटा रहता है। लेकिन यहाँ पर टूट
पढ़ना अगर उसको पूरा वर्ब लिया जाए फिर भी इसकी हकीकी माना इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ पढ़ना को ही वर्ब लिया जाए फिर भी हकीकी माना इस्तेमाल नहीं हो रही, और मजाजी माना इस्तेमाल हो रही है मिलकर हमला करना, किसी बात पर किसी काम पर मिलकर शिद्दत से अमल करना, इसको टूट पड़ना कहते हैं। ये इसकी मुहावरतन माना है, ये इसकी वो माना है जो इसको अहले जुबान ने घड़ा है, अहले जुबान बोलते चलते आए हैं। तो मुहावरा में जो वर्ब होता है, जो फेल होता है, वो अपने हकीकी माना नहीं देता, वो अपने लुग़वी माना नहीं देता, वो अपनी सच्ची माना या जो उसके अदर वर्ड है उसके माना नहीं लिए जाते, बल्कि मजाजी माना लिए जाते हैं। और वो मजाजी माना हर कोई नहीं बना सकता, बल्कि अहले ज़बान ने बनाई हुई होती है और वो बोलते चलते आते हैं। जैसे कलेजे में ठंड पड़ना, अब इसका मतलब है कि कलेजे में पूल उतर गई, कोल्ड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, माना सुकून आ जाना। इस तरह से अब सुकून कहाँ, कोल्ड कहाँ, तो इस तरह से बहुत से मुहावरे हैं जिनको हम बोलते चले आते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि मुहावरा क्यों बोला जाता है, इस तरह से अदर वर्ड्स नहीं बोले जाते बल्कि मजाजी माना क्यों ली जाती हैं, इससे क्या करना मकसूद होता है, या मैं दूसरे लफ्ज में यूं कहूं कि हम मुहावरे क्यों बोलते या पढ़ते हैं। चौथी जमात से लेकर और ये एमए तक, एमए के बाद तक मुहावरों पे बातचीत चलती रहती है। आखिर मुहावरे हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं रीडिंग कर दूं। किसी भी जुबान में जितने ज्यादा मुहावरे होते हैं वो जुबान उतनी ही तरक्की याफ्ता यानी कि रिच, मुहज़्ज़िब, तहजीब याफ्ता, शाइस्ता, जेंटल, खूबसूरत और जानदार समझी जाती है। मतलब जिस जुबान में जितने ज्यादा मुहावरे बोले जाते होंगे वो जुबान उतनी ही जानदार, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही तहजीब याफ्ता, उतनी ही दिलकश, उतनी ही शाइस्ता समझी जाती है। मुहावरा किसी भी जुबान का हुस्न और रंगो रूप होते हैं। मुहावरा समझने और बोलने वाला मुआशरा दरअसल मुहज़्ज़िब और बावकार मुआशरा होता है। अब इसको मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यूं कहें या अखबार में या अपनी गुफ्तगू में या रोजमर्रा बोलचाल में बस हादसा में 10 अफराद मर गए, अब ये मर गए का लफ्ज एक जरा गैर तहजीब याफ्ता या जिसको हम रफ कहें या जिसको हम दुरुस्त कहें या जिसको हम मना गैर शाइस्ता कहें लग रहा है। बात वही अगर हम यूँ कहें कि बस हादसा में 10 अफराद जाँ बहक हो गए तो वही बात कितनी शाइस्ता लग रही है, तहजीब याफ्ता लग रही है, हालांकि बात एक ही है। अगर मैं यूं कहूं कि भाई तो किस लिए गुस्से में हो रहा है, यार वो तो तप गया, गुस्से में हो गया, तो ये जरा अच्छा नहीं लग रहा, कहेंगे वो तो आग बगोला हो गया। बात करते हैं तो अब लगता है कि ये कोई तहजीब याफ्ता लोग बात कर रहे हैं। मिसाल बात कर, मुझे तंग नहीं कर, मुझे परेशान नहीं कर, अब ये बड़ा जरा अच्छा समझ तो आ रही है बात, लेकिन इसमें इतनी वो शाइस्तगी नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ यार नाक में दम नहीं कर, तो बात तो वही है लेकिन इसमें ज़रा शाइस्तगी, तहजीब याफ्ता होने की ये निशानियाँ कर रही हैं। मिसाल की बात है दोस्तों, और दूसरी बहुत से हैं मुहावरात जो हम बोलते रहते हैं, जैसे आँखें बिछाना, जिस तरह से आँखों को ठंडक पहुँचना, इसी तरह से कलेजे में ठंड पड़ना, तो ये सारे हमारे रोज़मर्रा हम बोलते रहते हैं ये मुहावरा। दोस्तों आप जितने बरमहल मुहावरे इस्तेमाल करेंगे, आपकी गुफ्तगू, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर
उतनी ही अट्रैक्टिव, उतनी ही शाइस्ता, उतनी ही खूबसूरत होगी। सुनने वाला ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। आदमी कितनी ही नागवार बात हो, कितनी ही सख्त बात हो, कितनी ही मुश्किल बात हो, उसको मुहावरे के ज़रिए हम न सिर्फ शाइस्ता बनाते हैं, मुहज़्ज़िब बनाते हैं, बल्कि ये ज़ाहिर करते हैं कि एक मुआशरा, एक शख्स का एटीट्यूड कितना तो अच्छा है। दोस्तों, अब हम मोहम्मद इकबाल जावेद की एक तसनीफ़ तामीर अदब, उसमें जो हमारे रोज़मर्रा होते हैं, तराकीब होती हैं या हमारे मुहावरात होते हैं, उनकी क्या अहमियत है, मैंने एक ये ज़रा लिखा है। और ये स्पेशल जो BA क्लासेस या MA क्लासेस हमारे सामईन हैं या हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर है। ये एंटर तक, इंटरमीडिएट तक, ये ज़रा उससे आगे की बात है, समझते हैं। अल्फाज से जुबान तरकीब पाती है। मैं है लगाता जा रहा हूँ ताकि बात रुक जाए। अल्फाज से जुबान तरकीब पाती है, रोजमर्रा से संवरती है, मुहावरात से निखरती है, पॉलिश होती है, चमकती है, खूबसूरती पैदा होती है, ज़रबुल अमसाल से चमकती और तलमे हाथ से वाक़फ़ियत हासिल करती है। गोया अल्फाज और तराकीब, रोज़मर्रा मुहावरात, ज़रबुल अमसाल और तलमे हाथ वो अज्जा हैं जिनसे ज़ुबान बालों पर लेती है और वक़ार पाती है। मना रोज़मर्रा मुहावरा, तलमी हाथ, ज़रबुल अमसाल, तराकीब, ये वो टूल्स हैं, ये वो अज्जा हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे ज़बान तरक्की करती है, जिनसे ज़बान बावकार बनती है, जिनसे ज़बान तहज़ीब याफ्ता बनती है। पता चलता है ये शाइस्ता और मुहज़्ज़िब लोगों की ज़ुबान है। इसलिए मेरे प्यारे तलबा इकराम, मेरे दोस्तों, मेरे देखने, सीखने, सुनने वालों, कोशिश करो आप मुहावरा को, रोज़मर्रा को अपनी गुफ्तगू में बरतें, इस्तेमाल करें और फिर आपकी ज़ुबानों से कैसे फूल झड़ते हैं, आपकी ज़ुबान कैसे खूबसूरत होती है और लोग आपकी बात कितनी तवज्जो से सुनते हैं। आपकी शख्सियत में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और चार चांद लग जाएंगे।